Hello and welcome back, viewers. This is Gaurang, and you are watching Lokmat Times. So, today we went across the streets of Mumbai and tried to talk to some of the youths and Gen Zs. You must be wondering, why did we attempt to talk to the youth? So, the answer is Nepal. The entire country is burning. The youth is in a rage. But why so? The government of Nepal went on and banned the social media sites. And after the step, the youth was in a rage and in anger. As per to the youth, the social media site was their only option left to express their feelings against the government. There were youths who came up and who spoke to us about the current situation and what change do they expect in their city and in Maharashtra. There were also an amount of youth who tried to run away and tried to ignore the camera or to put their point against the mic. But for the youth who spoke with us and tried to express their feelings, this is the point: media shows the entire reality. And for the ones who did not talk on the mic, please come up, talk about what you feel. So let's go ahead and understand what the youth of Mumbai feels. College going students about the entire row going on in Nepal. So we have another college going student with us. Let's try and talk to him about what he feels about the entire situation. So my first question to you is, what is your viewpoint on the corruption going on in India, and how do you feel can government stop the corruption? There is a lot of corruption going on in every each and every field. I feel government should implement some awareness to the people of India because mostly people also want to give money to they are also willing to give. They feel that if we don't give money, they won't work for us. But they should know that what their rights are and what they can do if they the services are not provided well. Also, looking into situation in Nepal, the entire Gen Z over there erupted in a rage, and due to that, the entire government had to turn down their pages. So, what do you feel the entire Gen Z, is it so powerful in our country as well? The youth is powerful everywhere, and the, they can do everything. And Gen Z, after all, are on a verge of they are like willing to speak out everything, and they are willing to seek change for everything. So yeah, we are willing to. We are anyways fighting for from corporates as well. सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या चीज़ में डिफरेंस चाहते हो, क्या नया चाहते हो जिससे लोग और बेटर ज़िंदगी जी पाए? जो आजकल के यूथ होते हैं नशा पानी में सब मतलब हर जगह नशा करते रहते हैं, यहाँ वहाँ कचरा करते हैं। वो सबको रोकने के लिए ओपन ग्राउंडेड में जिम बनाना चाहिए, जिससे कि आजकल के बच्चे लोग ना, जैसे उनका हेल्थ पे भी ध्यान आएगा, नशा पानी थोड़ा कम करेंगे अगर जिम में वो लोग ज़्यादा करेंगे तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि अगर गवर्नमेंट और ज़्यादा ओपन जिम्स क्रिएट करके देती है आप लोगों को, तो आप सब अपना टाइम जो है वहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, अपने बॉडी पे ज़्यादा ध्यान दोगे। सो दैट्स अ गुड पॉइंट। तो आगे और बढ़ेंगे और एक स्टूडेंट से यहाँ पर पूछेंगे, आपको क्या लगता है किस चीज़ में आप एक डिफरेंस पाना चाहोगे? फीस में हमारे कॉलेज में हमारा एक दोस्त है, उसका फ़ीस 700 रुपये लगा और हम वहाँ पे 50 रुपये भर रहे हैं। ये कैसा गवर्नमेंट है? तो आपका बेसिकली गवर्नमेंट को ये कहना है कि हम जितना डिज़र्व करते हैं, जो प्रॉपर हम डिज़र्व करते हैं, उतना हमें चीज़ मिलना चाहिए, राइट? और आपको शायद से पता होगा कि नेपाल में ओवरऑल क्या हुआ है, जब यूथ यानी कि जेन ज़ी जो वो जब एक साथ आई, तो एक रात में पूरा वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुआ। तो नेपाल के जेनजीज लोग ने बहुत सही किया, उन लोगों को भगा के। जो नेपाल के वर्कर्स थे, काम करने वाले थे, उनको पैसों से उन्होंने अपने पॉलिटिशियंस ने अपने बेटे को ऐश कराया, यूएसए घुमाया, महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे वॉचेस पहनाए। उन्होंने सही किया भगा के उनको। So, basically, as we could see, this guy has an entire clear view about what was happening in Nepal. So, his entire viewpoint here is that whatever we deserve must be done properly. So, as you could see, that we were talking to some of the youths and Gen Zs all around Mumbai. So, we have another student with us. Let's try and understand what are her issues she's facing and what changes does she want in Mumbai and Maharashtra and overall system in the country. So, yes, tell us what is the first thing you want to see a change in. लैंग्वेज बैरियर, फिर एजुकेशन सिस्टम। जैसे कि लैंग्वेज बैरियर में अगर हम लोग इधर ही रह रहे तो मराठी आना चाहिए। हाँ, अगर लाइक घूमने आ रहे या फिर थोड़े दिन के लिए आ रहे तो कंपलसरी नहीं होना चाहिए कि तेको मराठी आना चाहिए, मराठी में बोल करके। अब जैसे कि अभी मैं आगे जाके वोट देने वाली हूँ और ये सोशल मीडिया में जो वायरल चालू है कि वोट चोरी हो रहा है, वो सब सच नहीं होना चाहिए। जैसे सच वो जो चल रहा है वो नहीं सच होना चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो वोट मैं किसी को दे रही हूँ वो सही हो, मतलब किसी और
कैंडिडेट ना चुन के आए, वो क्या बोलते घपलाबाजी ना हो, तो वैसा तो जो भी एकदम क्लीन और क्लियर वो वाला डेमोक्रेसी हो अपना कंट्री का, क्योंकि इंडिया डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है, सबको मालूम। तो यही चीज़ इधर गलत हो रहा है करके और इंडिया वाले ही बोल रहे, तो गलत है ना। एजुकेशन में जो डोनेशन लेके सीट्स देते हैं बच्चे लोग को, और उनके पेरेंट्स भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं कॉलेज को कि डोनेशन लेके मेरे बच्चों को सीट्स दो। और दूसरी बात है कि करप्शन में जो ट्रैफिक पुलिस वाले रहते हैं, मतलब फ़ाइन उसका मतलब लेना चाहिए, वो नहीं ले रहे हो, मतलब नीचे से पैसा लेके उनको छोड़ रहे हैं, मतलब एक चांस दे रहे कि फिर से गलती करे हो। So as we were talking to a few citizens and Gen Zs in Mumbai and around Mumbai, so we have a few goals with us. Let's try and talk to them about what is their issue they face in the daily routine. So आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर मुंबई में रहते हुए आपको ऐसी कौन सी चीज़ एक डेली बेस पे फेस करना पाता है जिससे आप फेड अप हो चुके हैं और उसमें आप एक चेंज देखना चाहते हो? अगर देखने को जाए तो हम लोग दिन में भी बाहर निकलते हैं तो लड़के लोगों का वही चालू रहता है, ए किधर जा रही है, छेड़ना विड़ना। तो उस चीज़ पे मुंबई पुलिस को, गवर्नमेंट को कुछ तो एक्शन लेना चाहिए। अभी हम लोग इतना निकलते हैं तो हम लोग अगर ढक के भी कपड़े निकलेंगे तो यही बोलते हैं कि भाई लड़की गलत कपड़े निकली, गलत ये की। तो लड़कियों की क्या गलती है? अभी वो घर से बाहर नहीं निकले, क्या घर से बाहर निकलेगी तो ये चलेगा, घर के अंदर रहेगी तो कुछ और चलेगा। तो उस चीज़ पे मुंबई पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। तो बेसिकली आपका कहना ये है कि मतलब सिर्फ गवर्नमेंट और पुलिस को नहीं, तो लोगों की सोच में भी एक बदल आना बहुत ज़रूरी है। और आई ऑल्सो फील द सेम दैट इफ मुंबई पुलिस एंड द गवर्नमेंट इज लिसनिंग टू अस, प्लीज़ लिसन टू देयर प्ली एंड गेट दिस थिंग फिक्स्ड। अब जाकर पूरा यूथ साथ में आया, यूथ ने आवाज़ उठाई, तो जाकर वहाँ के पीएम को रातों रात रेजिग्नेशन देना पड़ा और वहाँ का जो पूरा गवर्नमेंट था वो रातों रात हिल गया। तो ऐसा कौन सा चेंज आप देखना चाहोगे और क्या निर्णय देना चाहोगे गवर्नमेंट को? मैं गवर्नमेंट को ये बोलना चाहूँगी, जो जो यहाँ पे बराबर नहीं चल रहा है उसके लिए तुम लोग बराबर ध्यान दो, और किसे खड़ा करना चाहिए किसे नहीं खड़ा करना चाहिए, तुम सब लोग मिलके क्या कर सकते हैं क्या नहीं, वो गवर्नमेंट खुद तय करना चाहिए। जो भी हम लोग मतलब जो स्ट्रगल कर रहे, मतलब जो भी हो रही प्रॉब्लम्स, दिक्कतें खुल के तो हम बता नहीं पाते, क्योंकि फिर हमारे पर भी मतलब कोई भी कुछ भी उंगली उठाएगा इसके लिए, लेकिन गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना चाहिए। As we wrap up our chats with Mumbai's youth on the busy streets, it's clear that their voices are loud and full of fire, just like what happened in Nepal. Their young people came together, fought against corruption and unfair rules, and even made the Prime Minister and government step down. So now here in Mumbai, after seeing Nepal's big change, our Gen Z opened up about their own pains. These young faces aren't just talking, they are demanding real fixes for Mumbai and India. Their anger is a wake-up call for leaders to listen and act before things boil over. The future belongs to this entire generation. And if Nepal taught us anything, it's that their fight can change everything. Thanks for watching Lokmat Times. Share your thoughts below and keep watching and keep this conversation going.